करें दोस्तों? Shall we? Now can we have some silence? आ रहे हैं आपके बहुत सारे लोग. एक बार आप सेटल डाउन जल्दी हो जाइए. शुरू कर रहे हैं आपके सब लोग कह रहे हैं शुरू करने को. प्लीज सिट डाउन. आइए. हाँ नहीं ऑर्डर स्कूल मास्टरिश कर देते हैं आप इसको. राइट सर, वी आर स्टार्टिंग. तो मैं आज उल्टा करता हूँ, मैं इंग्लिश में पहले करता हूँ. नॉर्मली हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं. यहाँ रख दो, इधर रख दो, यहाँ रख दो. जस्ट वन सेकंड. थैंक यू. Friends, let's start. Friends, we express deep, very deep and pervasive and strong concern at the manner in which criminal charges have been leveled against individuals in what was, in a sense, nothing but a political protest. There is nothing here which can remotely, by the most perverse distortion, be called organized violence, sinister intent, premeditated wrongdoing. This is an unequal, unfair misuse and misapplication of law. Now, I am giving you a view. I know the matter is sub judice as far as bail is concerned. Bail is not a ruling on the legality ultimately. And that we hope and trust the court will take a positive view. But I am not on that. I am only giving you the Congress party stand without in any manner commenting on what would be the sub judice outcome of this matter. The crucial point, everybody, our political opponents, our various controllers of this whole democratic state have forgotten. Large sections of the press have also forgotten, unfortunately. I must say that. Is that it is not important what you think or what I think. It is not important that you will protest by standing quietly inside your house with a placard, and he will protest by standing on his head, and he will protest by taking his shirt off. That is not the issue at all. Different people can adopt different forms of protest. The issue is, can you criminalize or weaponize any of these forms of protest? Shouting, standing, taking placards, taking off your shirt, gesticulating. Unless there is violence, there is criminal intent. There is an intent that you are a policeman, I will pick you up in your hands and throw you out. There is destruction of property. The harsh truth is that none of these essential ingredients, mark the word essential ingredients of any offense exist. I don't want to sound technical, but there is no mental intent to do violence, to create a riot, to have an insurrection, to destroy property, to attack a public servant, to assault a public servant. Nothing. You may disagree with the form of protest. Another party may do a different form of protest. But you cannot, in any humane, constitutional, compassionate, inclusive democracy, weaponize and criminalize it. This narrative which is adopted is directly contrary to the video recording of everything which happened. Please point out from the video recording, where is the terrorism? Where is the violence? What did they do? You can call them misguided. I can call them that this is a form of democratic protest. And the Indian National Congress, the Indian Youth Congress reiterates that peaceful protest, and the operational word is non-violent protest. Ultimately, Mahatma Gandhi adopted various forms of non-violent protest. Many people did not agree with him. And even today some people will not agree with him. That's not the point at all. Can you criminalize it? Weaponize it? The Supreme Court has said many, many times, and I don't want to bore you with technicality, there is a Mazdoor Kisan Shakti Sangathan judgment of 2018, one out of
many. The words are very evocative. In a democracy, the right to protest is a fundamental right. It enables direct participation in public affairs where individuals and groups are able to express dissent and grievance and expose the flaws in governance. They're not my words. And demand accountability from state authorities as well as powerful authorities. So, you think it is right, you are entitled to, you are the masters in terms of majority. But we think that farmers' rights are being trampled upon. We think that there is an unequal application of several economic issues to marginalized and backward sections of society. We believe that the government has much to hide. You can deny it all. But the question is, should these people protest inside their bedrooms? Should these people protest by standing quietly because you say the right way to protest is to stand outside the minister's house with a placard only? Now let me also bust another myth. It is wrong, as some of my esteemed friends on the ruling side have again and again tried to mislead by saying, आप अगर किसी के घर के अंदर घुस जाएं तो वो क्या अतिक्रमण नहीं होता है, ट्रेसपास नहीं होता है, गलत नहीं होता है? ये बिल्कुल अनुपयुक्त उदाहरण है. कोई किसी के घर में नहीं घुसा. घर होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी. भारत मंडपम प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. भारत मंडपम एक पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जगह है. हाँ, ये बात जरूर है कि उसके 3 भाग हैं. एक अंदर है जहां समारोह होता है, एक एकदम बाहर है बिल्डिंग के, और बीच में एक दालान है, एक पोर्टिको है, एक लॉबी है. उसको आप सबसे ज्यादा कहें तो सेमी पब्लिक प्लेस कह सकते हैं, सेमी सार्वजनिक. उसको घर के साथ एनालॉजी देना कोई उपयुक्त होता है? और अगर जवाबदेही कोई मांगता है तो वो सेडिशन नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता. आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी और तरीके से विरोध करता, आप किसी और गलत तरीके से कर रहे हैं, शर्ट नहीं उतारिए, शर्ट उतारिए. ये 2 मत हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फौजदारी, कोई भी कानून, क्रिमिनल कोई भी उल्लंघन नहीं कह सकते. मैं आपको थोड़ा सा तकनीकी आपके जरिए कुछ कहना चाहता हूं. अब मैंने एक सूची बनाई है सभी प्रावधानों की. ये बीएनएस के प्रावधान है, ज़्यादातर हमको भी याद नहीं है, पुराने इसके प्रावधान थे आईपीसी में. अब 121 voluntarily causing hurt and grievous hurt, 132 assault or criminal force to deter a public servant. Mark my words, huh? Voluntarily causing hurt, grievous hurt to a public servant. जरा मुझे बताएं कहाँ किसको क्या ऐसा हुआ है. मुझे एक तो उदाहरण दे दीजिए आप. जैसा मैंने कहा, पुलिस अफसर को अटैक करना, उसके ऊपर रुक के उस पर आक्रमण करना, उसको दंडित करना, उसको चोट लगाना, ये प्रयत्न कहाँ हुआ है? ये मंशा कहाँ थी? ये विवेक कहाँ था? ये इंटेंशन कहाँ था? विदाउट इंटेंशन यू कांट हैव क्रिमिनल लॉ. असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट 132 है, ये भी उसी तरह का एक प्रावधान है. तीसरा, मैं सब ले रहा हूं जो कुछ आप सोच भी सकते हो. 195 असॉल्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट अ पब्लिक सर्वेंट व्हाइल सप्रेसिंग अ रायट. यानी आप पब्लिक सर्वेंट एक रायट को रोक रहे हैं, उसमें मैं आपके ऊपर अटैक आक्रमण कर रहा हूं. इन बेचारे बच्चों के तो दिमाग में भी नहीं आया ये. करना तो दूर, प्रयत्न करना तो दूर. 221 ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस. हाँ, मैंने हमला किया, मैंने विरोध किया, मैंने आपको ऑब्स्ट्रक्ट कहां किया, अवरुद्ध कहां किया? बल्कि आपने पकड़ के मेरे को बाहर ले गए, मैं कुछ नहीं कर पाया. डिसोबीडियंस टू, ये 223, डिसोबीडियंस टू ड्यूली प्रोमलगेटेड ऑर्डर. कौन सा ड्यूली प्रोमलगेटेड ऑर्डर है? हाँ, ये मान सकते हैं आप कि वहां पर 144 शायद हुआ हो. तो इसके लिए आपने ये चार्जेस लगाने की आप बात कर रहे हैं. कहीं मैं पढ़ता हूं आतंकवाद, कहीं मैं पढ़ता हूं देशद्रोह, कहीं मैं पढ़ता हूं असॉल्ट. 190 मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस. कई लोगों को कॉन्स्पिरेसी की चार्ज में पकड़ा गया है क्योंकि वो वहां थे नहीं. मैं वहां था नहीं. मेरे जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा, बब्बर शेर वहां पर कुछ कह रहे थे, आपके हिसाब से गलत तरीके से, हमारे हिसाब से सही तरीके से.
उनको आपने मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली या कॉन्स्पिरेसी में घेर लिया। तब तो कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी में पकड़ा जाता था, हम सब कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और उसका एक जो मुद्दा है उसको हम रखते हैं सामने। प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स प्रेजुडिशियल टू हार्म, जो पुराना होता था 153 अलग अलग समुदायों के बीच में, क्या किया भाई इन लोगों ने? इनका एक तो स्लोगन दिखाइए जो टीवी में है सब कुछ, इम्प्यूटेशंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। इनके मत के अनुसार कृषक, आर्थिक, रोजगार मुद्दे राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के हक में हैं, न कि उसके विरुद्ध में है। कॉमन इंटेंशन, क्या कॉमन इंटेंशन था? किस चीज का इंटेंशन था? कौन सी हिंसा का इंटेंशन था? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इत्यादि इत्यादि। इसीलिए श्री राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष ने सही कहा था, मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा, आपने पढ़ा है, उनको ट्विटर में भी कहा, बाहर भी कहा है। आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति देशद्रोह है, सवाल पूछना साजिश करना है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप देश के विरुद्ध बोल रहे हैं। सत्ता के विरुद्ध आप आवाज उठाते हैं तो लाठी मुकदमा और जेल, लाठी मुकदमा और जेल, ये करीब करीब लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब क्या मिला? लाठियां। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच मांगी थी। ये चीजें हमारी संस्थापित स्मृति से हट जाती हैं, हमारी जो स्मृति है बहुत जल्दी धूमिल हो जाती है। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ, वहां असुविधा करार करके उसको हटाया गया, फोर्स यूज किया गया। यूएस कांग्रेस ने देश को अहित में जो किया गया है यूएस ट्रेड डील, उसको शांतिपूर्वक विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी कहा गया। मेरे पास पूरा उनका वक्तव्य है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक वाक्य गांधी जी ने कार्यान्वित किया था 100 साल पहले। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रखती है। हम भारत में हैं, इस गौरवशाली देश में हैं और यहाँ के गौरवान्वित नागरिक हैं। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं हैं। और ये समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस सरकार की पहचान पिछले 10-11 साल से हर संस्था में ऐसी रही है। आखिर कभी पहले आपने सुना कि 150-140 सांसद को एक साथ निरस्त या निलंबित किया गया? कभी आपने देखा किस प्रकार के सस्पेंशंस और क्रूर एक्शन लिए गए क्योंकि प्रश्न पूछा गया, गणतंत्र में विरोध करने का अवसर नहीं दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पैटर्न है, ये एक बार की बात नहीं है। एट द एंड लेट मी से दैट वी कमेंड आवर कॉलीग्स इन द इंडियन यूथ कांग्रेस, वी कमेंड आवर कॉलीग्स इन द कांग्रेस जनरली, that they have put up such a tremendous fight in hostile conditions. I have personally examined these sections and find no particular element or ingredient of them even applicable. Leave aside conviction, leave aside punishment. I am very happy and proud that many people have come forward readily and voluntarily. I requested Ms. Rebecca John, a senior advocate, to lead the defense of the IBIC personnel, and we are very happy, proud and grateful to her that she is doing it in many of these bail cases.
We hope and trust that the judge and the legal proceedings, which I am sure will go on, will take a holistic view of such activity in a democracy. Terrorism and anti-national are two words which are the favorite of this regime, and they are nowhere near miles of this incident. According to us, the government has lost its equilibrium, and the more it tries to sensationalize the issue, criminalize the issue, weaponize the issue, the more these young individuals, their causes, their thinking are elevated, and their whole action gets highlighted. Thank you. मैंने मिक्स करके इसलिए बोला ना, एंड का बोल देता हूँ वापस. अंत में मैं ये, मैंने अभी सब हिंदी और इंग्लिश में मिश्रण बोला, मैं अंत में जो बोला है उसका वापस विवेचन कर दूं हिंदी में संक्षिप्त में, कि अंत में मैं सराहना करता हूं, समर्थन करता हूं हमारे इंडियन यूथ कांग्रेस IYC और कांग्रेस के कॉलीग्स का. ऐसे ज़बरदस्त आक्रमणकारिक जो एक्शन लिए गए सरकार द्वारा, उनको इस दृढ़ता से, इस विश्वास के साथ उन्होंने विरोध किया है. वो हर मुद्दे को निडर तरीके से उठाते हैं. राहुल गांधी जी ने सही शब्द इस्तेमाल किया, बब्बर शेर हैं. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और विशेष रूप से विधि के क्षेत्र में वरिष्ठ विधिवेत्ता हैं, जो अपना समर्थन, अपनी सर्विसेज देने के लिए स्वतः हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे को खुद अप्रोच करते हैं. मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूं, ऋणी हूं. अभी इस मामले में IYC के सीनियर लोगों को जो किया जा रहा है, उसमें एक बड़ी वरिष्ठ अधिवेत्ता हैं मैडम रेबेका जॉन, उनसे हमने अनुरोध किया और वो खुद पेश हो रही हैं कई सारे बेल्स में. मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूं पार्टी की तरफ से. मैंने खुद ने जांच की है इन प्रावधानों की, और जहां तक मुझे प्राथमिक और अंतिम दृष्टि दोनों से दिखता है, इनमें से एक भी इंग्रेडिएंट शब्द इस केस को लागू नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको अलग अलग प्रावधान पढ़ के बताया. जहाँ तक ये न्यायालय का सवाल है, ये मामला सब जुडिस है. हमारी आशा और विश्वास है कि न्यायाधीश और कोर्ट कचहरी इसका एक गणतांत्रिक लोकतांत्रिक सिस्टम में, इको सिस्टम में क्या इसका रोल है ऐसे विरोध और ऐसे प्रोटेस्ट का, उसके संदर्भ में इसका निर्णय लेगी. और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ने अपना सब संतुलन खो बैठा है, सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना सब संतुलन खो बैठा है. जितना वो इसको सनसनीखेज, क्रूरता से, फौजदारी से इसका एक हथियार बना के इसको दबाने और दबोचने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही ज़्यादा इन युवाओं के जो मुद्दे हैं और इनके जो मौखिक निडर वक्तव्य हैं, वो उतने ज़्यादा ही और हाईलाइट हो जाते हैं, अंडरलाइन हो जाते हैं. धन्यवाद. सर, बीजेपी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि पहले इस मुद्दे में कुछ पूछना है किसी सर को? इसी मुद्दे पे है सर, IYC प्रोटेस्ट के ही मुद्दे पे आ रहे हैं. सर, चूंकि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सारे तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं ने IYC के प्रोटेस्ट को सही ठहराया है, उसको बैक किया है, मगर अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि AI समिट को बदनाम करने के लिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कांग्रेस चाह रही थी कि उनको अपने साथ लाए, और उनके ऐसे कई वीडियोस भी सामने लाए हैं, और ये बीजेपी के जितने भी स्पोक्स पर्सन है, लीडर्स हैं, ये आरोप लगा रहे हैं आप. देखिए, मेरे को ये इस देश का दुर्भाग्य मानता हूँ मैं कि हर चीज़ में, हर कोने में, हर पेड़ के नीचे, हर बुश के पीछे इस सरकार को एक साजिश दिखती है. ये इस सरकार की असुरक्षा दिखाती है, भय दिखाती है, न कि विपक्ष की. हर चीज में आवाज को दबाना, उसको स्ट्रैंगुलेट करना, उस प्रवृत्ति से इस प्रकार के गिरोह और साजिशों की बात की जाती है. अगर आप में शक्ति है, स्वतः अपने ऊपर हौसला है, तो कृपया इन प्रकार की चीजों का विवरण बंद करिए. आपका सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस कंट्री में, इस देश में कोई भी किसी प्रकार का मुद्दा जिसकी आपके साथ 100% सहमति नहीं हो, उसको उठाए नहीं. तो मैं आपको वापस जवाब दे सकता हूं कि न कांग्रेस किसी रूप में, न कांग्रेस के लीडरान और न कांग्रेस की युवा कांग्रेस
कभी भी ऐसा होने देगी कि जो सही मुद्दे हैं उनको सामने नहीं रखें। बीजेपी ये भी कह रही है कि बीजेपी विरोध के जरिए कहीं ना कहीं देश का विरोध इस चीज से दिखता है। हाँ, ये आपने एकदम सही बोला। इस वाक्य से सच्चाई सामने आ जाती है। आपके प्रश्न में आपका उत्तर निहित है। बीजेपी का विरोध देश का विरोध है। बीजेपी सब कुछ है। ये देश, उसकी अस्मिता, उसके गणतांत्रिक उसूल, उसकी लोकतांत्रिक नियम बीजेपी के जन्मने के बाद और बीजेपी की सत्ता में आने के बाद बने हैं। जहां ऐसा इंटरसेक्शन होने लगता है अहंकार का और एक ऐसी फीलिंग का कि हम कोई गलती नहीं कर सकते, इंटरसेक्शन ऑफ एरोगेंस एंड इनफैलिबिलिटी, ये उसका परिणाम है। हम बीजेपी हैं, हम देश हैं, हम सर्वे सर्वा हैं। इस देश में और कोई आवाज निंदा की नहीं उठ सकती, त्रुटि की नहीं उठ सकती, गलती हमसे हो ही नहीं सकती। It looks like BJP doesn't have WhatsApp messages enabled. सर एनसीईआरटी की किताब में जो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर आया था उसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस मैं नहीं कह रहा हूं इसमें, मैं खुद पेश हुआ हूं। सर, कल भी पेश हुआ था, आज भी पेश हुआ हूं। जो करा है उच्चतम न्यायालय ने वो किया आपके सामने। मुझे बहुत कहना है, लेकिन मैंने वो कोर्ट में कहा है, आज भी कहा था, कल भी कहा था। मेरा यहाँ कहना उपयुक्त नहीं होगा। यद्यपि केस एक प्रकार से खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी अभी लंबित है। लेकिन सिंघवी साहब इस पर जो आरोप लगते हैं, जिस तरह का ये मामला है, क्या केंद्र सरकार की छवि खराब होती है? क्योंकि इससे पहले भी देखिए, मैंने कहा कि मैं इस पे नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं पेश हुआ हूं। मैं एक चीज कह के बात को वापस आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन सर इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, हमारा विरोध किसी रूप से इस बात पे नहीं है कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते न्यायपालिका से। मुद्दा है कि आप आंशिक रूप से, सिलेक्टिव रूप से न पढ़ाते हैं, न पूछते हैं, न बताते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, राजनीतिक दलों में क्या हो रहा है, मिनिस्ट्रों में क्या हो रहा है। अधिकार क्षेत्र के इतने अलग अलग वर्ग हैं और एक न्यायपालिका को उठाकर ये सिखाना चाहते हैं 8वीं कक्षा के लोगों को इस मुद्दे में। ये बहुत एक सिलेक्टिव, पार्शियल, बहुत ही पीसमील और एक प्रकार से बड़ा एक, आज मैंने नहीं कहा, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शायद बड़ी साजिश भी हो सकती है। जी, और आपके अलायंस पार्टनर्स हैं समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, इन तमाम लोगों ने दे आर नॉट इम्प्रेस्ड विद द मेथोडोलॉजी और द वेन्यू दैट वाज प्रोटेस्ट। दैट इज ए नैरेटिव ऑफ द बीजेपी। प्रधानमंत्री ने उनका धन्यवाद किया इन पार्टीज का, तो क्या आप लगता है कि कांग्रेस थोड़ा सिंगल आउट हो गई है इस पूरे मामले में? There is the Prime Minister's thanks are being wasted. He should use them for better purposes. Different political parties have different forms of protest. The way TMC protests in Bengal is not the way SP protests in UP. The way Congress protests in Delhi may not be the way Congress itself protests in Telangana or Karnataka. So everybody is entitled to adopt, and as I said, we are missing the basic issue. Again, I must repeat at the cost of repetition. The issue is not what form of protest you adopted, because you say it's wrong, I agree. I say it is right, you may agree. Each of us has our own view. The real issue is, can you criminalize it or weaponize it? Nobody is answering that issue. सर हिमाचल कहाँ, कौन बोल रहा है? हाँ, Singhvi sir, your IOC colleagues, we just talked to them. They are alleging that they are being harassed from security agencies and they are being intimidated and said. who colleagues? Don't. IOC colleagues, Indian Youth yeah, Congress. yeah. Are you aware about such thing and are you doing something? Of course they are being Because harassed. some legal remedies and all. This itself is a harassment which I have just been describing for the last half an hour. This is a very serious harassment that you pick up peaceful protesters and subject them to this 4 days remand, no bail, etc. Everybody knows that they will be out ultimately. But equally everybody knows that the process is the punishment. What more can be the harassment? This is much more than harassment. सर सर हिमाचल रिपीट नहीं, अलग बार बार नहीं, एक अलग अलग। हाँ, तो नाउ हैव वी फिनिश्ड? क्लीन चिट दी है उसमें क्या, जो क्लीन चिट की बात। अब इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर और कुछ नहीं है।
नहीं, मैं ऐसे, मैं जिस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उस पर कोई प्रश्न और नहीं है, खत्म। हाँ अच्छा, अब एक मिनट, अब उसके अलावा मैं उसमें बताइए, एक मिनट उसके बताइए, बार बार नहीं करिए, उसमें एक खत्म करिए मुद्दे को। ओके, मैं एक तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से निचली अदालत से रिमांड पुलिस कस्टडी आईवाईसी अध्यक्ष और बाकी कार्यकर्ताओं को दी गई है, उसको ऊपरी अदालत में आप लोग कब चुनौती दे रहे हैं? और साथ में सर एक सहयोगी दलों को लेकर के कि उन्होंने इस बात की तो निंदा की कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में प्रदर्शन किया, लेकिन उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जिस पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, उसको लेकर के आपके सहयोगियों ने चुप्पी साधी हुई है। क्या ऐसी यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट से इंडिया गठबंधन में एक दरार आ बिल्कुल गई है? आपका गलतफहमी है, दरार का सवाल नहीं उठता, किसी रूप से नहीं है। बीजेपी चाहती है कि ये नैरेटिव फैलाया जाए, इस ट्रैप में कोई न पड़े। निश्चित रूप से समर्थन किया है कोई भी विपक्ष का अंग और सत्तारूढ़ पार्टी के भी बहुत अंग, कोई इस बात को जस्टिफाई नहीं करता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं। ये बात अलग है कि आप सत्तारूढ़ पार्टी में बोल नहीं सकते, दबी आवाज़ों में हमको सब बताते हैं कि इस प्रकार से इन बच्चों को क्रिमिनल प्रोसीडिंग में डालना सही है या उपयुक्त है या समर्थन करते हो, एक कोई वर्ग नहीं है ऐसा। और आपने चैलेंज वैलेंज का बात तो इतने मैंने अच्छे अच्छे लोगों को उस पर लगाया है, रेबेका जॉन जी निर्णित करेंगे, निर्णय नहीं आया उससे पहले ऊपर कहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। सिंघवी जी, मेरा सवाल वही है कि कल जो फैसला आया है नेशनल हेराल्ड के पंचकुला मामले में, उसको किस तरह से आप देखते हैं, जो क्लीन चिट दी गई है? देखिए, मैंने तो बार बार इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं हुआ और आप नॉर्मल क्राइम में अलॉटमेंट्स के प्रोसीजर के ऊपर करते हैं वगैरह, तो ये एक प्रक्रिया चल रही है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है या केंद्र सरकार है, उनका भी उद्देश्य ये नहीं है कि इसको किसी अंत में लाया जाए, इसमें कोई कन्विक्शन हो। उनका पूरा उद्देश्य है कि ये पॉट बॉइलिंग, ये एक पेंडेंसी चलनी चाहिए, तो हर 3 महीने में सुर्खियों में कुछ डाल दो, तो उसका आप परिणाम देखते हैं। कई बार निर्णय ऐसे आते हैं, नहीं तो वो हर किसी को किसी कंप्लीशन में नहीं ला सकते, क्योंकि कोई ऐसे तथ्य नहीं मिले सामने। और ऐसा ही एक उदाहरण ये है पंचकुला वाला। सिंघवी जी, जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ भारत मंडपम में, भैया आप अलग अलग वापस खत्म करके फिर उसमें आप आगे चलिए, बोलिए सर। उसको लेकर क्या कांग्रेस बैकफुट पर है? क्योंकि उसमें 3 घटनाक्रम हुए जो मैं आपको बताता हूँ। पहला, पवन खेड़ा जी सबसे पहले आए, उन्होंने कहा कि क्या हम AI समिट में अगर प्रोटेस्ट ना करते तो क्या उसमें बेसमेंट में करते? सर, ये तो एक बैकफुट वाला बयान है, पहला। दूसरा सर, अखिलेश यादव ने निंदा की इसकी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके सहयोगी दल है सर, 1 मिनट। और सर तीसरा, प्रियांक खड़गे जी ने कर्नाटक में कहा कि हमारा ये तरीका और अच्छा हो सकता था। तो आप लोग सत्ता पक्ष पे हावी होने के बजाय, खासकर जो पवन खेड़ा जी ने कहा कि क्या हम बेसमेंट में प्रदर्शन करते, ये बयान बैकफुट वाला बयान है। तो क्या पार्टी ये आपका मत सच में है, बयान है? आपको पूरा हक है ये मत रखने का, ये मत सही है, ये नहीं समझना शुरू कर दीजिए। मैंने भी ये कहा कि कोई जो प्रोटेस्ट करेगा वो अपने घर में 4 दीवारी में दरवाजे बंद करके प्रोटेस्ट नहीं करता है। ये बात अलग है कि मैं किसी और के घर के अंदर घुस के नहीं कर सकता। जहाँ घर का निवास स्थान का सवाल होता है वहाँ एक अलग कानून अप्लाई करता है। भारत मंडपम किसी का निवास स्थान नहीं है। आप मान सकते हैं कि साहब ये गलत था, तरीका गलत था, आप कोई और तरीका अपनाते, हर आदमी का तरीका अलग होता है, फिर भी आप उस मुद्दे को भूल रहे हैं। मान के चलते हैं कि आप सही हैं कि ये गलत तरीका था, एक बार मान लेते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद जो ये प्रावधान मैंने पढ़े हैं, जो कार्रवाई ली गई है, जो क्रूरता दिखाई गई है, जो गैर गणतांत्रिक तौर तरीके अपनाए गए हैं, धौंस जमाने की प्रक्रिया हुई है, डराने की प्रक्रिया हुई है, दबाने की प्रक्रिया हुई है, ये कोई व्यक्ति विपक्ष का और बहुत हिस्से सत्तारूढ़ के भी इसका समर्थन नहीं करते। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये अभी एक इवॉल्विंग चीज़ है, मैंने औपचारिक बयान नहीं पढ़ा है, अभी कुछ समय है बाकी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आम तौर पे हमने बहुत चुनाव साथ लड़े हैं, पहली बार नहीं लड़ रहे हैं, और अगर स्वाभाविक एलाइज कहें उनके तो वो भी बनता है। लेकिन इसका क्या प्रारूप होगा, क्या इसकी एक स्कीम होगी, क्या बाउंड्री होगी, क्या कंटेंट होगा, इसमें भी आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि 22 में भी यही हो रहा था, फिर लास्ट में सामंजस्य नहीं बन पाया था। तो देखिए, एक अभी वक्तव्य आया, अभी इस पर कोई डिटेलिंग नहीं हुई, आप उसके लिए सब्र करिए। ओके, थैंक यू।